हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर एंड यू वाचिंग डीएल जोन। गाइस, आज की वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको एक डिक्टेशन सुनाएंगे और उसको आपको लिखना है। उसके बाद हम उसको टाइप भी करके दिखाएंगे। टाइप करने के बाद में जो कहाँ पे मिस्टेक आती हैं और क्या मिस्टेक काउंट होती हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। उससे पहले डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले ये एक लिस्ट है जो डिफिकल्ट वर्ड्स की है, जिसकी आप तैयारी कर लीजिएगा वीडियो रोक के। एंड इसको प्रैक्टिस करने के बाद में डिक्टेशन को प्ले कीजिएगा, इसको आप लिखिएगा। लिखने के बाद हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1. On behalf of the Government of India, I extend a very cordial welcome to the Chief Ministers and other representatives from the states and union territories who made it convenient to attend this important meeting at short notice. There has been a steep increase in the prices of certain essential commodities in the last few months. This has affected all sections of society, but particularly the poor and middle class families. At the outset, I would like to state that this conference expresses its empathy and concern for the people who have suffered hardships because of the problem. The problem of price rise in India cannot be isolated from the problem in agriculture markets, consumer markets, and the administration. It is a problem that simultaneously affects both the housewife and the farmer. Whenever there is a steep price rise, it makes a hole in the expenditure budget of the consumer family and the income expectations of the producer family. Rising prices is a national problem. It needs to be tackled by both the center and the state government separately as well as jointly. While an objective analysis of the problem is no doubt necessary for its proper comprehension and resolution, politicization of the issue should be avoided. The spirit of cooperation and sharing of responsibility alone can help us evolve effective long-term, medium-term, and immediate strategies to stabilize and reduce prices of essential commodities. I am sure we will conduct the proceedings of this conference in this constructive spirit. My government has accorded the highest priority to ensuring adequate supplies of essential commodities as well as keeping their prices within reasonable limits. Towards this end, a series of meetings has been held. Recently, the Cabinet Secretary had convened a meeting of the Chief Secretaries of State Union Territories to review the price situation and also to evolve an action plan for curbing the rise in the prices of essential commodities as well as increasing the supplies of these commodities in different parts of the country. The plan has already been sent to you for further action. I am sure that the state government and union territory administrations have come prepared
to discuss the implementation of the plan. The main reason for the recent support is prices was the weather. तो हमने कंप्लीट टाइप कर लिया है, अब इसको सबमिट कर लेते हैं एंड देखते हैं कहाँ पे हमने मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद देखते हैं हमारी कहाँ मिस्टेक हुई हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमने काफ़ी टाइम लगा दिया तो पेज रिफ्रेश होने के बाद मिस्टेक ना हो जाए, मतलब गायब ना हो जाए सारा कंटेंट। तो यहाँ पे हमने टाइप जो एक्चुअल पैसेज था वो है और उसके बाद जो हमने टाइप किया है टाइप टेक्स्ट में वो मटेरियल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे मिस्टेक की है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितनी यहाँ पे मिस्टेक की है। मीन्स 95% हमने एक्यूरेसी दी है और हमारी 5% यहाँ पे मिस्टेक हुई है, एरर हुई है। अब यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने थे और हमने कितने टाइप किए हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब देख लेते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक की है और उसको क्या रीज़न हो सकता है जो हमने मिस्टेक हुई है उसके रिगार्डिंग में, तो जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे जो रेड से मार्क है ना वो ये हैं जो हमें यहाँ पे टाइप करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे उसको ग्रीन वाला टाइप करा। देखिए कभी भी हमारे पास में चीफ मिनिस्टर का नाम आता है तो वो हमारा यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। कोई भी पोजीशन अगर होती है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे कैपिटल होता है, हमने यहाँ पे स्मॉल करा था। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। देखिए कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टीप इंक्रीज, स्टीप में ई मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे मेरी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सेम एज साइमल्टेनियसली की जगह पे साइमल्टेनियस अगर लिख दिया तो यहाँ पे हाफ मिस्टेक काउंट होगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने लास्ट के अल्फ़ाबेट्स नहीं मिस कर दिए हैं, ठीक है, टाइप नहीं किए हैं। अब यहाँ पे सेंटर की बात करें, सेंटर में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। और यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए द स्टेट गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इन सभी के जो फर्स्ट अल्फ़ा होते हैं वो कैपिटल होते हैं। इनको हमेशा याद रखिएगा। एक लिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसकी हाफ मिस्टेक काउंट होती है। सेपरेटली मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है। द यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में, फुल स्टॉप के बाद में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो हमारा कैपिटल होता है। अगर आपने स्मॉल कर दिया है उसको तो यहाँ पे आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मीडियम टर्म देख रहे हैं, मीडियम टर्म के बीच में एक हाइफन है। अब आप नहीं जानते होंगे अगर, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में जो स्किल होता है उसमें हाइफन की मिस्टेक काउंट होती है। इसकी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होती है पंक्चुएशन में, ठीक है। तो ऐसे हाइफन वाले वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसको लिख रहे हैं कि यहाँ पे हाइफन आता है, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पे एक और वर्ड आया है द कैबिनेट सेक्रेटरी। सेम मैंने आपको बताया कोई भी अगर पोजीशन आती है उससे पहले अगर द लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल आता है। यहाँ पे मेरी हाफ ऑफ मिस्टेक करके 2 मिस्टेक हो गई, मतलब आपकी फुल मिस्टेक यहाँ पे काउंट हो गई है। तो ऐसे आपको हाफ ऑफ मिस्टेक भी बचानी है। ऐसे आगे तरह द चीफ सेक्रेटरीज, यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ा मेरा कैपिटल मतलब मिस हो गया, ठीक है, मैंने स्मॉल कर दिया है। उसी के नीचे जाएंगे यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरीज में, देखिए सेम ही मिस्टेक है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, मैंने एक पैराग्राफ, एक लाइन यहाँ पे मिस कर दी है, तो इसकी मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, मतलब 5 से 6 मेरी मिस्टेक्स होंगी, मैंने मिस ही कर दिया, मैंने टाइप ही नहीं किया। और नीचे देखेंगे फॉर द रिसेंट, तो यहाँ पे मैंने तो एक्स्ट्रा लिख दिया है या तो मैंने आपको टाइप ही नहीं किया है, तो इसकी मिस्टेक यहाँ पे काउंट होती है। तो ये सब मिस्टेक इस तरह से काउंट होती है। तो आपको स्मॉल जो मिस्टेक्स होती हैं, जो आपकी हाफ मिस्टेक होती है, उस पर भी आपको काम करना है। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है। अगर ये वीडियो पसंद आती है, आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो और भी आए, तो आप कमेंट करके बताएं और मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय जय।